water is an amphoteric compound that also act as a good solvent of polar and ionic compounds. Water is an amphoteric compound because it can be both as an acid and base. Equation 1 shows water acting as a Bronsted-Lowry acid. इक्वेशन 1, ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे वाटर जो है एज अ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, OH आयन में कन्वर्ट. आइडेंटिफाई द टू कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स इन इक्वेशन 1. अच्छा जी, एसिड 1 इज H2O, सो कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड 1. और कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? जब वंस इट लूजेस प्रोटॉन इट बिकम्स OH माइनस, सो OH माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड 1. ठीक है, OH माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड 1. देन acid 2. What is acid 2? Acid 2 is the one which donate proton in reverse reaction. So reverse reaction में proton कौन donate करेगा? HNO2. That means कि HNO2 जो है is the acid 2 and conjugate base of acid 2 is obviously NO2 minus, because once it loses proton it converts into NO2 minus. So NO2 minus is the conjugate base of acid 2. ठीक है जी, क्लियर है ये? Next part, water also behave as a Bronsted-Lowry acid when it dissolves methylamine. Explain the ability of methylamine to act as a base. So it has a lone pair available. Why it can act as a base? Because it has a lone pair available on nitrogen. Write an equation to show water acting as a base with methanoic acid. Water acting as a base. So CH3COOH reacts with water. Okay, now water will act as a base because it will accept proton. Methanoic acid will lose proton. It becomes ethanoate ion plus H3O plus. ठीक है जी, ये इक्वेशन आ गई. The ionic product of water measures the extent to which water dissociate. ठीक है, this is the ionic product of water dissociate into H plus and OH minus. Figure 2.1 shows how Kw varies with temperature. Write an expression for Kw. So Kw is equals to concentration of, it is the product of ions present in water at equilibrium. The concentration of H plus ion, concentration of OH minus, इनका product है. Use information from figure 2.1 to deduce whether the dissociation of water is an exothermic or an endothermic process. Explain your answer. G. So is it an exothermic or endothermic? So as we can see that when temperature rises, as we are moving from left to right, temperature is increasing and the concentration of ions, the product of the concentration of ions is also increasing. ठीक है जी, ये बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है आयंस का प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है. सो दैट मींस द dissociation of water is an endothermic process. So it is an endothermic process. It is an endothermic process as temperature rises, the product of ions also increases, or product of concentration of ions also increases. हाँ जी, क्लियर है बेटा ये पॉइंट? हाँ जी, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना बेटा, टेम्परेचर हम इंक्रीज करा रहे हैं, तो जब हम पानी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दैट मीन्स कि हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, वाटर को आयोनाइज कर रहे हैं. ठीक है जी. An aqueous solution has a pH. An aqueous solution has pH 7 at 30 degree centigrade. ठीक है, आपके पास aqueous solution है, इसकी pH 7 है at 30 degree centigrade. Use information from figure 2.1 to explain why the solution can be considered to be alkaline at 30 degree centigrade. तो आपके पास aqueous solution है at 30 degree centigrade and we have to explain that why at 30 degree centigrade this solution would be alkaline. pH 7 है, that means the concentration of H ion is at 30 degree centigrade. pH is equal to 7. That means concentration of H ion would be 1 into 10 raised to power minus 7. ठीक है, pH का फॉर्मूला तो याद होगा ना सबको. pH is equals to negative log
कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन। तो अगर पीएच गिवन है तो कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 to the power माइनस पीएच, तो -7 है, यानी कि 1 × 10⁻⁷। चलें अब देखते हैं कि एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड के डब्ल्यू की वैल्यू क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड? तो एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज अराउंड 1.2 1.4। ठीक है, अब जहां तक मुझे ग्राफ से लग रहा है तो दिस इज अराउंड 1.4 × 10⁻⁻, 1.4 × 10⁻⁴ 1.40। The kW is equals to 1.40 into 10⁻⁻। थोड़ा सा उधर देखिए, सही वैल्यू मैंने देखी। ये 1.4 नहीं, थोड़ा सा ये ऊपर है अगर आप देखेंगे तो दिस इज 1.5, बिकॉज ये मिड में आ रहा है थर्ड ब्लॉक के। ठीक है, थर्ड ब्लॉक के मिड में है, so this is 1.5 into 10⁻⁻40। ठीक है जी, दिस वुड बी 1 पॉइंट, पेंसिल काफी थिक हुई भी थी, तो 1.50 into 10⁻⁻40। दिस इज दी वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू। और अब यहाँ से हम ओ एच आइन की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो ओ एच आइन की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी? के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू concentration of H plus into concentration of OH minus. So the concentration of OH minus would be equal to 1 into 10, 1.5 into 10 raised to power minus 14 divided by 1 into 10 raised to power minus 7. So that would be equal to 1.5 into 10 raised to power minus 7. So that means that at 30 degree centigrade, the concentration of OH minus is greater than, because H ion की concentration कितनी है? 1 into 10⁻⁷, और OH ion की ज्यादा आ रही है, तो the concentration of OH ion is greater than the concentration of H plus ion, therefore solution is alkaline। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? हाँ जी, सबको क्लियर है बेटा? अच्छा जी, नेक्स्ट है the three physical states of water have different standard entropies. The three physical states of water have different standard entropies associated with them. Table 2.1 shows these values. The three physical states of water have different standard entropies. ये water solid phase में entropy आ गई, liquid phase में and gas phase में. Explain the difference in the entropy value of water and water liquid. So in liquid state, more randomness. In liquid state, more randomness, disorder बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा डिसऑर्डरली अरेंज्ड होंगे, मोर अरेंजमेंट्स ऑफ एनर्जीज। एक्सप्लेन व्हाई द इंक्रीज इन एंट्रोपी इज मच ग्रेटर व्हेन वाटर बॉइल्स देन व्हेन इट मेल्ट्स। ठीक है जी, तो जब आप इसको लिक्विड से गैस में लेके जा रहे हैं तो ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम इसको लिक्विड से गैस में लेके जा रहे हैं जी, तो सिंपल क्या आंसर हो जाएगा कि इट वुड हैव मोर रैंडमनेस। जब आप गैस फेज में लेके जाएंगे तो पार्टिकल्स नो no intermolecular forces, so increased randomness। ठीक है, लिक्विड फेज में क्योंकि स्टिल पार्टिकल्स दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर इन लिक्विड फेज, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीकेंस बट कंप्लीटली खत्म नहीं होती। ठीक है, तो इन लिक्विड फेज जो है वो इतना सॉलिड से लिक्विड में जाने में इतना डिफरेंस नहीं आएगा जितना लिक्विड से सॉलिड में जाने में आएगा। द एनर्जी चेंज फॉर वाटर सॉलिड टू वाटर लिक्विड आर शोन। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू आ गई, डेल्टा एच की वैल्यू आ गई। यूज दिस डेटा टू शो दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है, तो हमने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्रूव करना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, डेल्टा जी गिवन है, डेल्टा एच गिवन है। सो वी नो के एट स्टेट चेंज क्या होगा, डेल्टा जी वुड बी इक्वल टू 0 एट स्टेट चेंज व्हेन वाटर इज कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। डेल्टा जी जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा जी 0 के बराबर है। और डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इज डेल्टा एच minus t delta s would be equal to 0. So delta h is given, which is 6.03 minus temperature find out करना है। delta s कितना है, solid to liquid 70 minus 48 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 70 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 0 जी। तो यहां से आपने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर, टेम्परेचर का आंसर क्या आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, 274 विच इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 273 के, विच इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये केल्विन में आएगा। यहाँ से जो आंसर आपका आएगा, इस फॉर्मूले से जो आंसर आपका आएगा, लेट्स से इट इज 273 केल्विन विच इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही प्रूव करना था हमें कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। चलो जी, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। मेटल एयर बैटरीज are electrochemical cells that generate electrical energy from the reaction of metal anodes with air. ठीक है, metal air batteries, the standard electrode potential for the zinc air battery are shown. ठीक है जी, तो ये आपको जिंक एयर बैटरी की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो है वो गिवन है, कॉम्प्लेक्स है जिंक का। ठीक है, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन, एयर से जो ऑक्सीजन आ रही है। ठीक है, तो ये मेटल का पोटेंशियल हो गया, दिस इज पोटेंशियल ऑफ मेटल, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ एयर। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द जिंक एयर बैटरी। तो ये मोर पॉजिटिव है, दैट मीन्स के रिडक्शन ऑफ सेल, और ये लेस नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, दैट मीन्स के ऑक्सीडेशन इसमें होगी। ठीक है, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगी, ई नॉट सेल would be equal to E reduction minus E oxidation. That would be equal to plus 0.40 minus minus 1.22, दोनों को ऐड कर लें, क्या आंसर आ रहा है, 1.62 आंसर आ जाएगा, प्लस 1.62। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज द zinc air battery usually operates at pH 11. The overall cell potential is dependent on concentration of hydroxide ion. ठीक है, तो ये pH 11 पे काम करती हैं, और सेल पोटेंशियल जो है वो concentration of OH ion पे ही डिपेंड करता है। The Ernest equation shows how the electrode potential at the cathode changes with the concentration of hydroxide ion. So this is the Ernest equation for cathode. Calculate the electrode potential at pH 11. ठीक है, तो हमें E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। E नॉट इन्होंने हमें दे दी है, Z क्या होगा, 2 moles of electron involved में, that means कि Z की वैल्यू क्या है, Z is 2, and the only thing which we have to calculate is concentration of hydroxide ions. तो pH given है, pH 11 है, that means कि concentration of H ions क्या आ जाएगी, concentration of H ion would be equal to 10 to the power minus pH, so that would be equal to 1 into 10 raised to power 11. तो concentration of OH ions क्या हो जाएगी, 1 into 10 raised to power minus 3। ठीक है, दिस वुड बी द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो आपने के डब्ल्यू से जो है वो ये जो फॉर्मूला था, इससे हमने जो भी पहले हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था कि दैट वुड बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एच आई, तो वहां से ये आंसर आ गया। अब इसको फॉर्मूला पुट कर देंगे, ई इज इक्वल्स टू 0.40 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विच इज इन 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, ई की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है इसका देख लें, इसको सॉल्व कर लें। 1.345।
हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है बेटा? ये अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके। 0.488 है फाइनल आंसर। हाँ जी, चेक कर लें बेटा इसको दोबारा। 0.40 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 1 इंटू 10⁻³ पावर 2। जी, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 0.488 आ रहा है। अच्छा, मैं एक मिनट बेटा जरा चेक कर लूँ। 0.13545 है या 0.488 है? अच्छा जी, log of 10⁻³ log of, ये हो जाएगा 0.40 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग ऑफ, दैट वुड बी इक्वल टू -6। ठीक है जी, तो 0.059 divided by 2 multiply by 6.177, 0.40 minus 0.177, 0.40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0.40 प्लस 0.177, तो दैट वुड बी 0.577, 0.577। ये आंसर आ रहा है बेटा, चेक करें। हाँ जी, समझ आया?